Okay, so today we are going to start with questions of friction. Friction ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से एक स्टेप आगे है. तो इट इज अज्यूम कि आपको न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के सारे कॉन्सेप्ट पता है. Okay, so let's start with first question. A body of mass 10 kilogram is lying on a rough plane inclined at an angle of 30 degrees to the horizontal and the coefficient of friction is 0.5. The minimum force required to pull the body up. हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है. इंक्लाइन प्लेन का एंगल with respect to horizontal is theta 30 degree in this case. हमारे पास एक इसके ऊपर एक ब्लॉक है और ब्लॉक का मास दिया है आपको 10 kg. तो I'm just drawing a block over here. Okay, so the mass of block is less than n or y. So force of friction between block and the surface is 0.5. Minimum force required to pull the body up. सबसे पहले you should be able to do components. आपको पता होना ही चाहिए ये mg downward होता है. Okay, mg is downwards. This is normal reaction over here always. Okay, so you have this as mg. ये थीटा है तो ये थीटा है, ये mg cos थीटा है, and this is mg sin थीटा. तो ये mg sin थीटा है. Obviously this is normal reaction. Minimum force required to pull up the body against friction. So I am assuming कि आपको equations पता है. अगर नहीं पता है तो मैं सिर्फ हिंट दूंगा. तो हमको यहाँ पे फोर्स लगाना है which will pull the body up. F. आपको पता है जब बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन मूव होता है तो मोशन के डायरेक्शन में से अपोजिट डायरेक्शन होता है फ्रिक्शन. तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी ओवर हियर. तो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन पता होना बहुत जरूरी है. यू हैव दिस एज डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स F. And you should always know this F, frictional force F, is mu times of normal reaction. And normal reaction, as you can see from diagram, is mg cos theta. Correct? And obviously from figure you see force to take the body up. दो फोर्सेस को ओवरकम करना पड़ेगा. एक mg sin थीटा और एक फ्रिक्शनल फोर्स. तो इन दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा. तो F इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू टाइम्स ऑफ mg cos थीटा. So you will have F equal to mg common sin theta plus mu cos theta. I was expecting that you know this formula directly. मैं आपको ट्रिक देता हूँ. Trick is when the body is being pulled up against friction, acceleration is g sin theta plus mu cos theta. So acceleration A is g sin theta plus mu cos theta. This is acceleration when the body is being pulled up. हाँ, तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू ए. तो अगर आपको ये पता है, डायरेक्टली पता है अगर आपको ये, तो you will directly be able to solve this. Mass is 10. G की वैल्यू मैं 10 ले लूंगा फिलहाल. Sin of 30, sin of 30, yes, sin of 30 plus 0.5 cos of 30. So 20 sin 30 is half. This is half and this is root 3 by 2. तो ये आप यहाँ से 1/2 कॉमन निकाल लो. तो 20/2 1 plus root 3 by 2 0.8606 होता है. क्योंकि root 3 by 2 I have told you many times कि ये आपको बहुत बार लगता है. Yeah, so you know this. So this is 10 into 1.8606. मतलब
18 पॉइंट समथिंग है ना, तो 18 पॉइंट समथिंग। अभी ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, you don't have this in option, so where we went wrong, कहाँ पे गलती हुई, you have to verify कहाँ पे गलती हो सकती है। Okay, so m की वैल्यू 10, j की वैल्यू 10, right? Sin of 30 is half, right? Mu is 0.5, which is half, that is right. Cos of 30 is root 3 by 2, that is right. इन में से हाफ और हाफ कॉमन निकाल लिया, तो 1 प्लस रूट 3 by 2 प्लस रूट 3 by 2 है ना। यहाँ पे ये 1 बचेगा, यहाँ पे रूट 3 by 2 बचेगा। व्हाट इज रूट 3 by 2? 0.8606, तो 1 plus 0.8606 is 1.8606 by 10। There is a mistake. Where does this mistake lie? बताओ। That is where you have to fix it. Sin 30 is half. Cos 30 is root 3 by 2. That is correct. Okay. Yes. So see. Yes. तो ये छोटे छोटे गलतियां हमेशा होते रहेंगी। You have to take care of this. This is 100, not 20. तो ये आपको 20 लिखने के टाइम ही ध्यान देना है। That is going to be 100. 100 by 2, तो 50. This is 50 outside now. अब इजी है। क्यों इजी है? 18 5 का पता है क्या आपको? हाँ, तो 50 into 1.8 is 18 5, right? That is 90. 90 न्यूटन की आपको है क्या ऑप्शन? 91.4 न्यूटन। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो होती है, body of weight 64 Newton is pushed with just enough force to start it moving across horizontal floor, and the same force continues to act afterwards. If the equivalent of static and dynamic friction are 0.6 and 0.4 respectively, acceleration of the body will be एक horizontal floor है, उस पे एक मास है, बॉडी है जिसका वेट आपको 64 न्यूटन दिया हुआ है ना, बॉडी ऑफ वेट। इसको हमने एक सम फोर्स से हमने पुश किया है। दिस फोर्स इज जस्ट इनफ टू स्टार्ट द बॉडी to set the body in motion. Maximum value of static friction. The force at which the body just starts its motion is force of limiting friction, and limiting friction is the maximum value of static friction. Okay, so ऐसा आपको पता होना चाहिए। Now obviously आपको याद होगा जब फ्रिक्शन टॉपिक आप देखते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ये हमेशा ऐसा ही होता है, फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। एंड क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात है तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ओके, सो दिस इज व्हाट यू हैव नाउ। ये आपको बताना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना? The force which was required to set the body into motion, मतलब 64 न्यूटन। म्यू एस की वैल्यू आपको दी है 0.6। नॉर्मल रिएक्शन होता है mg इस केस, क्योंकि हॉरिजॉन्टल फ्लोर है ना, तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर के केस में यू हैव नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू वेट mg। So this is mg, this is normal reaction n। ओके, तो ये आएगा mg नॉर्मल रिएक्शन। तो m आपको मिल जाएगा 64 अपॉन 0.6 g। g की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूँ तो मत लो, क्योंकि क्या है अननेसेसरली कैलकुलेशंस हमको इंक्रीज कर देंगे। डू नॉट सब्स्टिट्यूट, क्यों आगे देखेंगे क्यों नहीं। सो बाय द वे वी विल डू इट लेटर। ओके, नाउ आपको यहाँ से मास मिल गया। आपको पूछा क्या है? आपको पूछा है, क्या पूछा है? what they are asking you is acceleration. So they are asking you acceleration.
एक्सेलरेशन का एक शॉर्टकट फॉर्मूला याद रखना, नेट फोर्स, ऑलवेज नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स, अब जब ये फोर्स है, दिस फोर्स इज मूविंग द बॉडी, अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शन। कौन सा? डायनेमिक। डायनेमिक एक्सेलरेशन कब होगा? जब बॉडी मूव होगा। जब बॉडी मूव होगा तो कौन सा फ्रिक्शन होता है? डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। So this is applied force minus kinetic friction force या dynamic friction force upon mass. Applied force तो 64 न्यूटन है ही, correct? Minus this is mu k mg, क्योंकि जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन है वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन है, सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन में आप कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लिखते हो इंस्टेड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। Force of friction is always proportional to normal reaction. सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन है तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक फ्रिक्शन, दैट्स ऑल यू डू, डिवाइडेड बाय n. So now you have to substitute values here, just put values. अब मैंने इसलिए बोला था कि do not put value of g 64 0.4, m की वैल्यू कितनी है? 64 upon 0.6 g, नीचे g, ऊपर भी g cancel upon mass, right? Mass is 64 upon 0.6 g again. तो कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने में इजी होगा, right? So what you need to do is 64 कॉमन निकाल लो, 1 minus 0.4 by 0.6 is 2 by 3, okay, upon 64, और ये जो है नीचे 0.6 g, इसको ऊपर भेज देते हैं, so cancel 1 by 3, 0.6 g मतलब 0.2 g, this is acceleration होना चाहिए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर, ओके। क्वेश्चन सिंपल है, बट क्या होता है कि पहले तो ये मास निकाल दो, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन पता है, नेट फोर्स बाय मास। अगर आपके पास मास ही नहीं है तो फिर व्हाट विल यू सब्स्टिट्यूट हियर? सो यू हैव टू जस्ट पुट नेट फोर्स, एंड नेट फोर्स इज ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, a block moving up at 30 degree with velocity 5 meter per second stops after 0.5 second. What is mu? So you see now the block is moving up. The block is moving up. The moment you hear block is moving up, what is T? Sin theta plus mu cos theta. V equal to A plus AT पता ही होगा, U plus AT, V equal to U plus AT आपको पता ही होगा। यहाँ पे मैं सिर्फ माइनस लिख रहा हूँ, क्यों माइनस लिख रहा हूँ? बिकॉज रिटार्डेशन, राइट? और फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 बोला ही है, इट स्टॉप्स। U 5 माइनस A की जगह पे वो G sin 30 प्लस म्यू cos 30 into टाइम कितना? 0.5 seconds. So this is 0.5. So just solve this. Sin 30 is half, mu cos 30 is root 3 by 2. Okay, 0.5 again half. This is equal to 5. कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ इसको यहाँ शिफ्ट करके पॉजिटिव किया और वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया. That's all I have done. That's it. So g की वैल्यू you can take 10 upon 2 common, 1 plus mu root 3 equal to 5, और यहाँ का एक और 2 था, यहाँ पे और एक 2 था, भूलना नहीं तो फिर वापस वही गलती होगी. तो दिस इज लाइक 1 जा 2 जा 1 जा 2 जा, तो 1 plus mu root 3 equal to 2, so mu root 3 equal to 2 minus 1 is 1, so mu equal to 1 by root 3, 1 upon 1.732, 1 upon 1.732, 1 upon, ओके. तो ये कैलकुलेशंस जो है, दिस इज समथिंग यू नीड टू लर्न हाउ टू डू. यू नो दिस. व्हाट इज 1 by 2? हाफ 0.5. गुड. तो 1 by 2
1 by 1.5 एग्जैक्टली, क्योंकि ये 2 by 1.5 इज 3 by 2 by 3, कितना आ गया 0.66, मतलब 1/1.5 आपको पता है 0.66 है, 1/2 आपको पता है 0.5 है, हमारा आंसर 1.5 और 2 के बीच में है डिनोमिनेटर में, एक ही ऑप्शन है 0.6। मैं वापस समझा देता हूँ कैलकुलेशन, दिस इज वेयर यू विल हैव टू लर्न। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है आप लोगों का, यू कैन नॉट डू कैलकुलेशंस ओरली। What you should know is 1/1.5 मतलब 1/3/2 मतलब 2/3 मतलब 0.66, 1/2 is 0.5, हमारा नंबर डिनोमिनेटर में 1.5 और 2 के बीच में है, तो 1/1.732 है, तो हमारा आंसर भी इन दोनों के बीच में आएगा, 0.66 और 0.5 के बीच में आएगा। कौन सा ऑप्शन है? एक ही है, इट कैन नॉट बी 0.5 क्योंकि 1/2 के लिए 0.5 आता है, तो इट कैन नॉट बी। यही पूछ रहे थे आप? नहीं, none of it, because you have in reality जब आप 1/1.732 करोगे तो ये आता है आपका 0.6। If you want, I can tell you by doing it on calculator, because this is what you will get for sure. So 1 divided by 1.732, right, 0.577। क्यों आया? हमने g की वैल्यू क्या डाली? 10, अगर हम 9.8 डालते तो एग्जैक्ट आंसर। This is how you can solve this question. A body of mass 5 kg rests on a rough horizontal surface of coefficient of friction 0.2. The body is pulled to a distance of 10 meter by a horizontal force of 25 Newton. The kinetic energy acquired by it is. So I need this particular diagram here. So एक बॉडी है, इसका मास है 5 kg, वो होरिजेंटल सरफेस पे रेस्ट कर रहा है, तो फ्रिक्शन 0.2। The body is pulled, अभी पुश की जगह पे पुल फोर्स, बॉडी इज बीइंग पुल्ड। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 मीटर, ओके, बाय अ होरिजेंटल फोर्स, दिस फोर्स की वैल्यू कितनी? 25 न्यूटन। तो 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट में when the body gets displaced by a distance of 10 meters, how much is the kinetic energy acquired by the body? Okay, so the normal reaction forget about this. We don't know, we don't get all of it. हमको सिर्फ समझना क्या है, उससे बाहर आएगा नहीं। That's all we need. अब टोटल डिस्प्लेसमेंट सेंटर ऑफ मास बाय द डिस्टेंस। I am applying a force to set the body in motion. A force is measure friction. The frictional force is okay. Of course, dynamic. So total work done on the body. That is where you do little mistake. Total work done is equal to total work done is equal to क्या आएगा? पहले तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में वर्क होगा कि नहीं होगा? The total work done is work done against friction.
जो बच गया वो अपीयर होगा इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अगर मैंने 25 जूल का वर्क किया है और सिर्फ 10 जूल रिक्वायर्ड है फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए, तो फिर 3 जूल इज विद द बॉडी, है ना। अब काइनेटिक एनर्जी इज टोटल वर्क डन, टोटल वर्क माइनस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन बताता हूँ मैं कैसे निकालना है, बट एनीवे ओके। टोटल वर्क इज force acting on the body into displacement of the body minus work against friction, work against friction, frictional force into displacement। ओके, तो ये आएगा आपका mu a into normal reaction है mu mg in short। ओके, so this is what you know। तो ये आ गया आपका 25 into 10 minus this is 0.2, mass of the body is 5, g की value 10, h की value 10, this is 1, 0.2 into 5 is 1, 1 ये 100, 10 into 10 is 100, second term is 100, first term is 250 minus 100, that is 150, 150। ओके, इसी क्वेश्चन को उल्टा पूछ सकते थे, व्हाट इज वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, आपने फाइंड कर ही लिया 100। तो वैसा भी next question, question number 5, 300 joule of work is done in sliding a 2 kg sliding है बहुत important है, a 2 kg block up an inclined plane to a height of 10 meter, taking value of acceleration due to gravity and strength, work done against friction। तो work done against friction आपको निकालना है। तो what is work done against friction? Obviously you see, एक चीज समझ लो, जब आपके पास एक इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन की बात हो रही है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोशन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, और जब आप बॉडी को ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर है ना, अप एन इंक्लाइंड प्लेन, यस, so when you are taking this body up an inclined plane, यहाँ पे total work done will be work done against friction and work done against gravity, because you are going against gravity as well in this case, you are going up। क्या पूछा है? Work done against friction। So what is work done against friction? Again वही चीज, work against friction is total work W total minus work against gravity, work against gravity, work against gravity appears as potential energy of the system। अभी यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है हाईली रिलेटेड। कैसे? पहले तो आप चार्ज को लाते हो, कहाँ से लाते हो? इंट्रोड्यूस करते हो, नो वर्क इज डन, क्यों? अपोज करने में कुछ काम नहीं। सेकंड चार्ज लाते हो, वर्क इज डन अगेंस्ट द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट, कहाँ गया? स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्यों? क्योंकि वर्क डन इज एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे भी ये मेरे पास एक बॉडी है, इसको उठा के यहाँ से ऊपर रख, वर्क किया ना, mgh, so it appears as mgh, total तो 300 दिया ही है, mgh। क्लियर कट बोला है हाइट, हाइट मतलब यहाँ से उठा के जब बॉडी को यहाँ तक लाए, तो उन्होंने आपको डिस्टेंस नहीं, उन्होंने आपको क्लियर कट बोला है, ये जो हाइट है, हाइट h, आपको h दे दिया, तो h दे दिया है, तो 300 माइनस m, तो 3 हाइट 300 से 200 गए 100, आ गया आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी।
राइट? ये तो ज्यादा सिंपल है सर, pretty simple thing. Next question. A block of mass 1 kg slides down a rough inclined plane of inclination 60 starting from its top. उल्टा केस है. You have this, this, this. I don't care so how anymore. Angle फिलहाल थीटा मान लेता हूँ. And the body is going down. Mass is 1 kg, which slides down a rough inclined plane of inclination 60 starting from top. If the coefficient of kinetic friction is 0.5, length of plane, it's not height. Do not confuse with height and length of plane. Length of plane is length of plane. Height is height. So length of plane L बोलो इसको L बोलो आपके ऊपर है. You can call that L if you want. That is 1 meter. Total distance covered is 1 meter. Then work done against friction is, take G as 9.8. What is work done against friction? अभी यहाँ पे एक चीज आप let's take a shortcut. Total work done is work done against gravity. And ये होता है against gravity को plus एक component होता है mu mg cos theta. ये कहाँ से आया? This work done against friction, जिसमें हम of course distance से multiply करेंगे. Of course क्योंकि force into distance. तो आगे से याद रखना कि mg cos theta into s into mu is work done against friction directly. अब हमको बार-बार total work done is work done against gravity, work done against friction. ये बोलने की जरूरत नहीं. Directly बताना. Work done against friction. Work against friction is equal to mu mg cos theta s. How many of you don't know कि formula कहाँ से आया? So all of you know कि formula कहाँ से आया. You don't know. It's okay. You should tell me if you don't know something. तो ऐसा है. अब बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी नीचे आ रही है. That is another thing. तो ऐसा है कि बॉडी है. You know this is you know this is theta. यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ये mg cos theta है, ये mg sin theta है, mg sin theta है, ये नॉर्मल रिएक्शन. बॉडी ऊपर या नीचे whatever it is, ऊपर मान लो. फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो वर्क होना है. अगर बॉडी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन नीचे है, बॉडी नीचे जा रही है तो फ्रिक्शन ऊपर है. राइट? व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? Mu times of what is normal reaction? Mg cos theta. Normal reaction is mg cos theta. Correct? This is force. What's the force? Frictional force. What is work done? Force into displacement. So work done against friction is mu g cos theta into displacement s. Okay. Mu की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 9.8, cos of 60 is half by the way, and s is 8 meter. This is oral है. This is 4.9. This is not wrong. 9.8 by 4. Sorry, not 9.9. क्योंकि ये 0.5 is half, 9.8 ये वापस से half. तो 4.9 का half 2.45. क्या 2.45? but एक का half. उसका half. Block of mass
50 kg slides over horizontal distance of 1 meter. Coefficient of friction between their surfaces 0.2. Work done against friction F. I want all of you to pay attention. All of you. देखो क्या होता है, ऐसा ये लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सरफेस है, फिर यहाँ पे ब्लॉक है ना, फिर यहाँ पे एक ड्राइविंग फोर्स है, उसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स है, राइट, ड्राइविंग फोर्स फ्रिक्शन फोर्स, फिर आप बोलते हो एक्सेलरेशन इज ड्राइविंग फोर्स माइनस फ्रिक्शन फोर्स बाय टोटल मास, ये सब करके यू गेट A इक्वल टू फर्स्ट थिंग, ओके, करेक्ट, ऐसा कुछ आएगा। दूसरी चीज ये है कि वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्टेंस। फिर वो बोलेंगे आपको कि दिस इज न्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इनटू एस, बट नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ फ्लैट सरफेस इज mg, correct? So mu mg s, correct? I don't want you to remember. Why are you occupying extra space of your brain? You don't have to do that. Horizontal surface, theta मतलब 0. What is cos 0? खत्म हो गया बात. So for horizontal surface, you have theta equal to 0, which is cos theta equal to 1. Therefore, work done against friction is simply mu mg s. आगे वही इक्वेशन, तो जब एक ही इक्वेशन से दोनों याद रख सकते हो तो दूसरा याद ही रख, always do this. Mu is 0.2, m is 50, g की वैल्यू अभी 9, मैं 9.8 क्यों ले रहा हूँ, वेरी ऑब्वियस, 98 दिख रहा है, 9.8 और s is 1, तो है ना, this is 50 into 0.2 is 10, 10 into 9.8 is 98, 98 joule option number, करेक्ट। तो ऑप्शंस पे देखो, हर बार जी के 10 डाल के नहीं चलेगा, बिकॉज यू हैव टू लुक, चलो डाल भी देते तो 100 आता है, क्या ही फर्क पड़ता है, ओके। नेक्स्ट, a 2 kg mass starts from rest u0 on an inclined smooth surface with 30-degree inclination, length 2 meter. How much will it travel before coming to rest on a surface with coefficient of friction 0.25? A 2 kg mass starts from rest on an inclined smooth surface. पहले केस में फ्रिक्शन नहीं है, ओके, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है, लेंथ, और इट इज क्वाइट ऑब्वियस जब वो बोल रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब वो ऊपर से ही नीचे आएगा, उल्टा तो हो नहीं सकता, करेक्ट। अगर उल्टा बोला होता इट स्टॉप्स, तो नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर स्टॉप होगा, नीचे से ऊपर जाने में अगेन ग्रेविटी जा रहा है, ओके। तो इट इज कमिंग डाउन द प्लेन, इज कमिंग डाउन, u is 0, शून्य, this is length is 2 meter, this angle is 30, mass is 2 kg. How much will it travel before coming to rest on a surface with coefficient of friction 0.25? तो अभी ऐसा ही केस just with friction, तो ऐसे केसेस में what you will have to do is, question simple है, if you remember stop, how much it will travel before coming to rest, stopping distance, मतलब v square equal to u square minus क्यों लिख रहा हूँ, because the acceleration है, v 0 स्टॉप हो गया तो फाइनली 0, तो आपको मिल जाएगा 0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा s इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a, करेक्ट। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रॉब्लम ओवर हियर? सो द थिंग इज, आपको यहाँ पे ये u, it is going to trouble you a lot. What is this?
how much will it travel before coming to rest? That is something where you have to work out. तो मैं आपको स्टेप बता देता हूँ, फिर आप सोचो क्वेश्चन का मतलब क्या है। पहले केस में b square equal to u square plus 2ax, इनिशियल 0 है, b square equal to root of 2ax डायरेक्टली हाँ b equal to, ठीक है, रूट नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, right of 2ax on a smooth surface a is g sin theta, क्योंकि प्लस म्यू cos थीटा आता नहीं है। अभी यहाँ पे भी वो ट्रिक था, ये भी एक ट्रिक है, आपको वो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, माइनस कब जब प्लस कब जब ऊपर जा रहा है, अब जब फ्रिक्शन ही नहीं है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, तो a इक्वल टू b sin थीटा, राइट। तो b स्क्वायर इक्वल टू 2g sin थीटा इनटू s, 2 into g, a की वैल्यू में भी 10 ले रहा हूँ, sin of 30 is 4 into s is 2, तो v आपको मिल गया रूट ऑफ 20, करेक्ट, v मिल गया रूट ऑफ 20, ओके ठीक है, v स्क्वायर 20 में क्या फर्क पड़ता है। एनीवे प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, क्वेश्चन में हाउ मच विल इट ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन अ सरफेस विद फ्रिक्शन 0.25, ये क्वेश्चन नॉर्मली समझता ही नहीं है, तो पूछना चाहता है what they are asking you is they are asking you कि ये जब बॉडी नीचे आ जाएगी, ओके, जब बॉडी नीचे आ जाएगा उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल सरफेस का ऊपर से जब स्टार्ट किया 0 स्पीड से, नीचे आते आते 20 रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गया। अब जस्ट एग्जांपल, अभी इसमें फ्रिक्शन है, ये यहाँ पे टेबल है, इसमें फ्रिक्शन है, तो आई कैन नॉट एक्सपेक्ट एग्जैक्ट डेमोंस्ट्रेशन, बट एनीवे सीधा नीचे के रुका था क्या, नहीं, अगर वहां पे हॉरिजॉन्टल सरफेस होता तो वो और आगे जाता, अगर उस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता, अगर ये नीचे यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता, ये नीचे ही जाती एयर रेजिस्टेंस से नहीं, एनीवे पर फ्रिक्शन है तो और कितना आगे जाएगा, तो फॉर्मूला हमने बना दिया, ओके। ये आपकी कितना है, इसको मैं 1 1 1 1 सफिक्स दे रहा हूँ और मैं आगे बोलूंगा, बट मैं यहाँ पे 2 2 और 2 ऐसा बोल रहा हूँ, but you will say initial velocity of second case ρ2 is equal to final, correct, and a2 is mu g, क्योंकि वो horizontal surface है, that is horizontal surface, okay, so a2 mu g, therefore we will have profit difference f as q2 की जगह पे v1 square upon 2 a2 की जगह पे what is v1 by the square बोला मैंने upon 2 what is mu 0.25, g की वजह हम 10 ले लेते हैं, बेटर है 1 जा 10 जा cancel 1 upon 0.25 is 1 upon 1 by 4, that is 4 meter. horizontal surface रफ था और
इंक्लाइन प्लेन था वो स्मूथ था, ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट किया था फ्रॉम सम हाइट ऑन इंक्लाइन प्लेन रेस्ट से, वो नीचे आते आते उससे अंडर रूट ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड गेन कर लिया। अब आगे का जो उसका पाथ है वो थर्ड फ्रिक्शन है, तो वो एक डिस्टेंस क्रॉस करने के बाद रुक जाएगा। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि सेकेंड केस का इनिशियल स्पीड मतलब फोर्थ केस का फाइनल, ये पता होना चाहिए हॉरिजॉन्टल सरफेस से अगर फ्रिक्शन है तो A equal to U. Okay, this is what we need to know. Done. Next question. A motorcycle is traveling on a curved track of radius 500 meter. So there's a curved track. जिसका radius of curvature R 500 meter का है. If the coefficient of friction between road and tire is 0.5, speeding will be. You know, whenever the motion is circular, you need to have centripetal force. In this case, centripetal force is provided by force of friction between road and tire surface. Okay, so centripetal force is mv square by r. This is mu times of normal reaction. मतलब mu mg cancel. V square equal to mu rg. V is under root of mu. ये without banking. Banking नहीं किया. What is banking? Raising outer edge of the road with respect to its inner edge. Road को आप पहले road ऐसा था उसको ऊपर उठा दिया. That is banking. So anyway, you have mu which is 0.5. You have r which is 500. 500 into 0.5, 25. Yeah, 250 क्योंकि 500 by half है वो. तो g की वैल्यू 10 ले लेते हैं हम लोग because it becomes easy then. 500 by 10 into 10 by 2. 1000 बराबर है ना 5. Okay, so this is 2500. 2500 का रूट 50. Option A. Okay, this is how you can solve this particular question. A fireman of mass 60 kg slides down a pole. Is pressing the pole with a force of 600 Newton. Coefficient of friction between the hand and pole is 0.5. What acceleration will the fireman slide down? मैं क्वेश्चन पूछता तो मैं पूछता हाउ मच इज द फ्रिक्शन है. 0.5 फ्रिक्शन है और पोल को पकड़ ही नहीं पाएगा. A lot of weight will be generated. What do you do in winter? Right? 0.5 का friction है. बहुत ही anyways, so you have a pole. On this pole, you have a fireman which is sliding down. अब जब वो slide down करेगा तो वो यहाँ पे हाथों को पकड़ के नीचे आएगा. And when he is coming down, he is pressing the pole. When he is pressing the pole, he is exerting a force, and that will have reaction, which is normal reaction. तो यहाँ पे मैं इस डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दूंगा. ये वो वॉल है या पोल है जिससे this fireman is coming down. फायरमैन की जगह पे मैं एक ब्लॉक दिखा दूंगा. So this block of mass is fireman. Okay, फायरमैन ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो एक्शन है. उस एक्शन ने जो रिएक्ट किया है वो रिएक्शन है. फायरमैन आ रहा है नीचे तो फ्रिक्शन होगा अपोजिट डायरेक्शन में और इसका मास एनर्जी ऑफ फोर्स वेट ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द फायरमैन इज डाउनवर्ड्स. ये है फोर्स. कौन सा फोर्स? वो जो पोल पे लगाया वो उसका रिएक्शन होगा ना नॉर्मल. इसका वेट है क्या एम की नीचे. फ्रिक्शन है अपवर्ड्स. स्मॉल एफ इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. गुड. तो क्या पूछा है? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन इज ऑलवेज नेट फोर्स बाय मास.
नेट फोर्स इज mg माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन माइनस mg मत करना, वो ऊपर थोड़ा सा अपॉन मास, mg बाद में करते हैं इसका mg को, फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन को mg कितनी गलती मत करो, एक्शन का रिएक्शन। ओके, तो अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हियर यू हैव तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मतलब वो जो 600 न्यूटन है वो, ऑलराइट, तो हियर यू विल हैव 600 न्यूटन, मतलब F, ये जो F है एक्शन है वो, M is 60, G की वैल्यू 10 बोली है, म्यू की वैल्यू 0.5 मतलब हाफ, और इंटू 600 ही करना है, तो वो 600 माइनस 300 हो गया, मतलब यहाँ पे 600 है ना, 600 का हाफ 300 बाय मास इज अगेन 60, तो ऊपर 300 है क्योंकि 600 माइनस 300 इज 300, 300 बाय 60 इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन, करेक्ट? गुड. What is so difficult? I have never understood why physics is difficult. So क्या था? Forces, action, reaction. क्यों? क्योंकि force is always a couple. Force is not single, always a couple. 11. A block starts moving up. ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है. A equal to G sin theta plus mu cos theta. A block starts moving up a fixed inclined plane of inclination 60 degree with velocity 20 meter per second and stops after 2 seconds. Approximate value of coefficient of friction. अभी यहाँ पे क्या करेंगे? Simple thing. V equal to Q plus AG. Plus की जगह पे minus because it is going up against gravity. V finally stop हो जाएगा. U A is G sin theta mu cos theta into T. So 20 equal to G की वैल्यू 10, sin 60 और mu की वैल्यू तो फाइंड ही करनी है, cos 60 into T is 2, so 1 and 2, 2 sin 60 is root 3 by 2 plus mu, this is half into 2, ये अच्छा है, ये 2 भी कैंसिल कर दो या फिर एक काम करो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे 2 कैंसिल करो, तो 2 इक्वल टू रूट 3 प्लस म्यू, ओके, है ना, क्योंकि हाफ दोनों में से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, तो म्यू इक्वल टू 2 माइनस रूट 3, 2 is 2 root 3 1.732, 0.27. Forget about this. 0.27. Correct? Easy question था. A block of mass 1 kg is at rest on a horizontal table. The coefficient of static friction between the block and table is 0.5. If G is 10 meter per second square, magnitude of force acting upward at an angle 60 from the horizontal that will just start the block moving X. ऐसा है, horizontal table है, उस पे एक block है जो रेस्ट पे है, ब्लॉक रेस्ट पे है, horizontal table पे है, नॉर्मल रिएक्शन NG होता है हमेशा. आगे बोला है स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है, मास दिया है, G दिया है, ओके, दैट्स ऑल. ये horizontal डायरेक्शन है. हमारे पास एक फोर्स है, लेट्स से दिस फोर्स इज, ये दिस इज पुलिंग फोर्स, है ना, तो बोला है the magnitude of force acting upward at an angle 60 from the horizontal that will just start the motion, just start. इसको मैं अगर F बोलता हूँ तो इस F का यहाँ पे जो कंपोनेंट होगा जो मोशन को रिस्पॉन्सिबल है वो होगा F cos 60, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्शन में जाएगा, which is of no use to us. तो हम लिखेंगे ही नहीं, क्यों लिखें, जरूरत नहीं. F cos 60 is the force which is responsible for motion, and friction
will oppose the motion. अब जब जस्ट मूव होने की बात होती है, जस्ट मूव, एक्सेलरेशन लेंगे क्या हम लोग? नहीं लेंगे। हम क्या बोलते हैं हमेशा? एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स बाय मास। नेट फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स, कौन ड्राइव कर रहा है इसको? F cos 60, और अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? लिमिटिंग फ्रिक्शन, करेक्ट। गुड। अपॉन मास, अपॉन मास। हाँ, ओके, बट बॉडी जस्ट मूव हुआ, तो एक्सेलरेशन कहाँ से आया फिर? जस्ट मूव मतलब जितना फोर्स मैंने अप्लाई किया है उतना तो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग गया, अब तो फिर एक्सीलरेट करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। मतलब इन शॉर्ट ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। इन शॉर्ट F cos 60 इज इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगली बार से ऐसा क्वेश्चन आए तो ये सब करना नहीं, क्योंकि अभी भी आप बोलोगे हियर A इज 0, A 0 आया, इसका मतलब आएगा A 0 हो गया, M वहां पे जाके 0 हो गया, फिर आप बोलोगे therefore 0 इक्वल टू F cos 60 माइनस FL। अरे लेकिन जितना फोर्स हमारे पास है वो तो बॉडी को जस्ट मूव करवा पा रहा है, मतलब नथिंग लेफ्ट टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन। तो सीधा सीधा यहाँ पे आएगा F by cos 60, हाँ करेक्ट है ना? क्या फाइंड करना है? वो F फाइंड करना है, F फाइंड करना है। व्हाट इज F? 2 टाइम्स ऑफ FL। व्हाट इज FL? 2 into mu into normal energy, normal reaction, correct? Good. So yes, I know, that's why I am first making a mistake so that we don't make mistakes like that. I know, okay, ये आप नॉर्मल रिएक्शन एंड लिखते हो, और क्योंकि आप हमेशा उस मोड में होते हो नॉर्मल रिएक्शन एनजी तो गलती, इसलिए you have to take into consideration यहाँ पे जो कंपोनेंट है f sin थीटा, तो ऊपर दो कंपोनेंट है, एक है f sin 60 और दूसरा है आपके पास नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे है नॉर्मल रिएक्शन भी है ऊपर की तरफ, और इसको बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को बैलेंस करने के लिए पीछे है जी, तो यू हैव एन, ओके। नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? mg माइनस f sin, तो 2 mu s mg माइनस f sin 6, करेक्ट? ओके, f इक्वल टू 2 mu s, mu की वैल्यू 0.5, m की वैल्यू 1, g की वैल्यू 10, माइनस f को तो फाइंड करना है, sin 60 235। So this is f, this is 1 है, ये 10 है, तो 10 माइनस f रूट 3 f बाई 2, रूट 3 f बाई 2, तो ये आपके पास आ जाएगा f प्लस रूट 3 f बाई 2 इक्वल टू 10। तो ये आपको सॉल्व करने के लिए f कॉमन 1 प्लस रूट 3 बाई 2 इक्वल टू 10, ये आपको पता है 1 प्लस 0.86 roughly 10 upon 1.86, 5 है ना, 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 पॉइंट, जैसे 10 बाई 2 5, नीचे नंबर छोटा हो गया तो ओवरऑल नंबर बढ़ेगा, या तो सिंपल सी बात है 10 और नीचे 1.8, 1.86 है ना, नीचे 1.8 मतलब 100 बाई 18,
18 5 is 90, तो 5 से ऊपर है ना, ये मैं इसको ऐसा कर देता हूँ 100 by 8, जब तो पता है क्या आएगा आपका 5 से ऊपर ग्रेटर देन 5 लेस देन 6, तो 5.36 जो भी है ऑप्शन में 60 है यहाँ पे yes। दो ब्लॉक्स A and B after 6 and 3 rest on a smooth horizontal surface as shown in figure. If coefficient of friction between A and B is 0.4, maximum horizontal force which can make them what? Make them move. Make them move. Make them without separation. क्या without separation? Make them move without separation. और move word रह गया तो ये देख लेना. Make them move without separation is. Without separation is. तो without separation का मतलब समझ लो दोनों ब्लॉक एज अ सिस्टम टुगेदर, मतलब मैं टोटल मास डायरेक्टली तरफ के ही मान के ही कैलकुलेट करूंगा, तो इजी है ना, मिनिमम फोर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स मैक्सिमम इस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक काम है, कैसे करेंगे, व्हाट इज हाउ डू यू फाइंड आउट दैट, फटाफट क्विक व्हाट इज मैथ, व्हाट इज मैथ, डू नहीं नॉर्मल रिएक्शन, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता ना, कहाँ हुआ फ्रिक्शन को ध्यान दिया तो फोर्स क्या हो गया, ओके तो फोर्स अंडर सरफेस बराबर है, तो सबसे स्मूथ है इस तरह, अब तो फिर सेपरेट नहीं होना तो फ्रिक्शन और नहीं चाहिए ना, फिर भी बात ये है और अगर दोनों में फ्रिक्शन नहीं है तो मैं इसको जब नीचे वाले को खींचूंगा तो ऊपर वाला तो नीचे आके गिर जाएगा, और तो फ्रिक्शन ए और बी में ही होना चाहिए ना, फ्रिक्शन ए और बी में होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर नीचे वाले को खींचो ऊपर वाला को खींचो, that is correct, nothing wrong there. So maximum horizontal force which can make them move without separation, वही तो बोल रहा हूँ, ये दो बॉडी है ही नहीं, ये सिंगल बॉडी है क्योंकि सेपरेट नहीं हो रहा है, what is horizontal force, it will be equal to frictional force, यही इतना फोर्स तो चाहिए ना, मूव कैसे होगा अदरवाइज, है ना, अभी आप बोलोगे यहाँ पे कहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मूव है, that is the problem here, क्योंकि थियरी नहीं पढ़ा हम लोगों ने, प्रॉब्लम है that is the problem. Have you went through theory of motion of bodies one over the other, ये एक्शन इस एक्शन उसका फ्रिक्शन यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे दिखा रहा था, मैं यहाँ पे दिखा दूंगा, क्या फर्क पड़ता है, ओके राइट गुड, ये फ्रिक्शन है, ओके, तो इसका रिएक्शन भी होता है, इसका रिएक्शन भी होता है, ये अप्लाइड फोर्स, ये फ्रिक्शनल फोर्स, किसने किस पे फ्रिक्शन एक्सर्ट किया पहले वो सोचो, बी ने ए पे या ए ने बी पे, अगर बी ने ए पे तो भी ठीक, लेकिन रिएक्शन होगा, whatever it is, प्रॉब्लम ये है कि आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये तो बहुत सिंपल केस है,
3 bodies भी ले सकते हैं, and that's why you need to go to theory first. So this will be the total maximum horizontal force. This is left as an assignment for you, how you derive this particular formula. जब आप नीचे के ब्लॉक को खींच रहे हो तो एक्शन है, एक्शन मतलब ओवरऑल ए का सिनेरियो ऐसा है, पूरी डायग्राम, ये एक ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे अपोजिंग फ्रिक्शन, और बी स्ट्रोक पर बॉडी है, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स एक्शन है तो उस पे यहाँ पे रिएक्शन है। अब आप करोगे, अब मैं नहीं करके देने वाला हूँ, you have to decide it, you have to do something. न्यू कितना 0.4, mass of A plus B तो 10, 9 sorry 6 plus 3, G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 4 into 9 36 न्यूटन, ऑप्शन नंबर 15. A car is moving along a straight horizontal road with a velocity of 72 km per hour. 72 km per hour होते थे 20 meter per second. 36 is 10 meter per second. 18 is 5 meter per second. 144 is, जब मैं बोल रहा हूँ 18 किलोमीटर पर आवर, हाँ 5 by 18 kilometer better है, okay. I'm not telling you to do it ये 5 मीटर पर है, 36 मतलब 10, 36 का डबल 72 मतलब 20, 144 मतलब इसका डबल किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में कितना है, 144 into 5 by 18, 18 1 का 18, 8 का 8 5 का 40. Okay, good. The numbers. Anyway, coefficient of static friction is 0.5. Shortest distance in which the car can be stopped. Stopping distance. अभी ज़्यादा yes. U square by 2 mu G. It is horizontal था. Okay. U square 20 square is 400. 2 into 0.5 is 1 by into 10. हो गया 40 मीटर. Option number A. Next question. अभी ये क्वेश्चन आप चाहो 14 स्टेप्स में सॉल्व करो, आप चाहो 5 में करो, आप जो करो. Force required to just move the body up. Acceleration का कितना पता है? So force required to move a body up is double the force required to prevent the body from sliding down. पहले तो ये समझ लो एक इंक्लाइन प्लेन है, यहाँ पे बॉडी है, जस्ट तो एक्सेलरेट जस्ट, ओके. तो पहली बात तो इसको ऊपर लेके जाना है, तो नीचे के जो लोग तरह नीचे को होता है एम जी राइट, और फ्रिक्शन को भी ओवरकम करना पड़ेगा, करेक्ट. तो ऊपर लेके जाने के लिए इसके तो प्लस होता है ना, एम जी sin थीटा प्लस म्यू एम जी cos थीटा, करेक्ट. सो दैट इज फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन g sin थीटा प्लस cos थीटा. और टू प्रिवेंट डाउन, देखो क्या है कि नीचे क्यों आएगा, नीचे क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक एम जी sin थीटा है, क्या था उसको रोकना है, मतलब इसको अप्लाई करना है और फॉलो करना है. आ जाएगा ऊपर
लिखोगे F प्लस फ्रिक्शन इक्वल टू mg sin थीटा, मतलब F इक्वल टू mg sin थीटा माइनस F, मतलब mg sin थीटा फ्रिक्शनल फोर्स इज गिवन एज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज mg cos थीटा, आ गया आपके पास mg sin थीटा माइनस u cos थीटा। अगर आपको याद होता, अब d sin theta plus u cos theta down is d sin theta minus u cos theta according to the given condition. Equation number 1, equation 2, equation 3. Equation 2 or 3 becomes from 1, 2 and 3. Up mg sin theta plus u cos theta equal to mg sin theta minus u cos theta, mg cancel cancel, sin theta equal to, okay, हाँ 2 नहीं तो सब कैंसिल हो जाएगा, मतलब sin किया 2 में लिखोगे तो फिर जब में लिखिए q 2 में लिखोगे तो sin theta कैंसिल, तो sin theta equal to minus u cos theta और समझ plus u cos theta equal to 2 sin theta minus 2 mu cos theta. So अब simple है, तो 2 sin theta minus sin theta that is 1 sin theta, 2 mu cos theta शिफ्ट कर दिया था तो प्लस हो गया था, प्लस mu cos theta, तो यह आ जाएगा sin theta equal to 3 mu cos theta. ओके 3 लिख दिया, आंसर खत्म हो गया, तो आंसर है आपके पास। बट एनीवे इससे सॉल्व, तो ये आ जाएगा sin by cos, tan sin by cos tan, तो tan theta ओके आपको क्या पूछा है, थीटा पूछा है, थीटा इज tan इनवर्स ऑफ, अब ये क्वेश्चन अगर आप याद भी रख लोगे तो भी चलता है, upward force is 2 times of downward, theta is tan inverse of t, just to move upward and to prevent body from coming down. If it is 2 times of upward, a block B is pushed momentarily along horizontal surface with velocity. If mu is coefficient of sliding friction between B and the surface, block B will come to rest after how much time? Time है ना ये, what is B by V? Meter per second square G. Anyway, काम करो after a time, time क्या है, sorry, yeah, then asking time. So how do you find out time? This slope V is equal to U plus IT. ये acceleration है, yes, तो रेस्ट कैसे आएगा? फाइनली क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है U minus what is T, U by E. What is A on rough plane? Mu G. What is U is V, V by mu G. हाँ तो ये क्या है ऑप्शन नंबर, उल्टा आ रहा है U AT T T Q by A बराबर तो है, करेक्ट। देखो अब ऐसे भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर सेकंड बराबर है, करेक्ट है, कुछ नहीं था ये सिंपल क्वेश्चन। A block of mass m is placed at rest on an inclined plane of inclination theta to the horizontal. If the coefficient of friction between the block and the plane is mu, then the total force important है, total force the inclined plane exerts on the block is a block of mass
if the coefficient of friction is mu, total force. Okay, so how do you find out total force? How do you find out total force? Components. ये तो आपको पता ही होगा. Better know components by now. आपको पता होगा expectation है this is आपको normal reaction is opposed by balanced by and cos theta यहाँ पे ये आ जाएगा. So yes, but ultimately what they are asking you is बताइए तो बराबर है ना? तो okay. प्रॉब्लम ये है कि अगर बॉडी मोशन में होता, फ्रिक्शन होता, आपको लिखना पड़ता है. तो टोटल फोर्स कैसे निकालोगे? यस, मैंने इसलिए बोला कि प्रॉब्लम ये है कि बॉडी मोशन में होता, मोशन में नहीं है ना, रेस्ट क्यों रेस्ट है? mg sin थीटा को नीचे खींच रहा है बॉय, इट इज रेस्ट. फ्रिक्शन you have answered it correctly. friction यहाँ पे, right? Friction is here. अब now when friction is here, resultant of normal reaction and friction is the total force. जो ब्लॉक नॉर्मल रिएक्शन भी इंक्लाइन प्लेन से आता है ना. नॉर्मल रिएक्शन कौन दे रहा है? इंक्लाइन प्लेन. फ्रिक्शन कौन दे रहा है? इंक्लाइन प्लेन. हाँ, तो टोटल फोर्स इज रिजल्टेंट ऑफ दीज टू. Where will the resultant go? For yes, that is where vectors are really important. So friction or normal reactions are perpendicular. मतलब resultant force, total force, resultant force R will be equal to under root of n square plus f square. Simple. क्यों? क्योंकि दोनों forces perpendicular थे. What is normal reaction? mg cos theta plus what is frictional force? mg sin theta only. क्यों sin theta only? क्योंकि रेस्ट पे है, मूव नहीं हो रहा है. मतलब फ्रिक्शन ने mg sin theta को बैलेंस किया हुआ है. ओके, राइट? So you will have mg square cos square theta plus sin square theta is 1. Root of mg square is just mg. हो गया टोटल. है क्या mg? ऑप्शन ए करेक्ट. तो टोटल अगर स्मूथ सरफेस बोला होता तो ओनली नॉर्मल, क्योंकि फ्रिक्शन तो होता नहीं है. जब सरफेस स्मूथ नहीं हो, इन दैट केस रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन कहाँ से आया? नीचे एक mg sin थीटा फोर्स था, लेकिन फिर भी बॉडी मूव नहीं हो रहा है, मतलब फ्रिक्शन ने उसको अपोज किया है, इसलिए. सो दैट इज व्हाट यू हैव. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. A car starts from rest. अभी ये stopping distance का आप कर, because we don't have that much of time to. But it is good question. Okay, it is a good question. 19 number is a good question. Straightforward इतना नहीं है, आपको थोड़ा सा solve करना पड़ेगा. You have to solve. और what I'll do is I'll take this one and बाकी आपको assignment दे दूँगा. A car starts from rest to cover a distance x. So we have a car which is starting from rest. It covers a distance of x.
The coefficient of friction between rod and tires is mu. Minimum time in which the car can cover distance x is proportional to. So the time in which this car will be able to cover distance x is. दो फॉर्मूला लगेंगे. Time v equal to u plus ac, v square equal to u square plus 2ax. v u तो 0 है. a will be mu g, horizontal surface इसलिए into t. तो यहाँ से आपको t मिल जाएगा v by mu g, right? तो let us call it number 1. दूसरे केस में v square to distances a is again mu g, distances okay. तो ये v square है, तो v is under root of 2 mu g x, correct? Okay, put this v over here, so you will have t is equal to under root of 2 mu g x upon mu g. I don't care for 2g or x because they're constants. So what I know is from t is proportional to root of mu by mu. मतलब t is proportional to 1 by root. Option number right. Good. So all other questions will be given for assignment. So we'll stop here for today, and if you have any doubts, you can ask.